So in the previous class I was teaching that what is food chain. I said food chain is a sequence of the various organisms which become food for one another, starting with the plant, and it may have minimum 2, maximum 4, 5, 6 members, not more than that. Each organism which is taking part in a food chain is known as trophic level. Trop stand for food, and we can also call it the energy level because food is actually giving us energy. So these are the various aspects, the definition I showed, and in the previous class we have studied that the entire ecosystem or the food chain is run using energy. एक ही चीज को बाहर से outside the ecosystem we require only one thing. Rest all things whatever is the requirement is available in that ecosystem itself. Water they will be getting from there only, carbon dioxide they will be getting from there only, minerals they will be getting from there only, all the other substances which are required, oxygen and all other जो भी चीज़ चाहिए वो सब वहीं से मिल रही है. बाहर से केवल और केवल एक चीज़ आ रही है, that is the source of energy, that is the light, that is the sunlight. The ultimate source is sun. So photosynthesis will be done using this sunlight, and the organic matter will be produced, and the light energy will be changed into chemical energy, and it is this chemical energy which is used by you and me for various activities, for maybe for talking, maybe for walking, maybe for heart to beat, maybe for lungs to breathe. All the various activity which we are doing, running, jumping, sleeping, standing, dancing, all these activities require energy, and all this energy ultimately comes from the energy which plant have fixed in food. Okay, so this is how the energy they are getting, and this is how the entire ecosystem goes. And then I said that when we have made the food chain, I said 90% of the available energy will be consumed by that organism itself. Lakshya Devani, you got any problem in hearing? Others are able to hear? Okay, done. So all the activities require energy, all the organs require energy for the various activity, and that is why 90% of the available energy is consumed. But it is a rough estimate. Okay, so 90% of the energy which is consumed by a trophic level be used by itself for their activity. मैंने जो भी कुछ खाया है उसका 90% मैं खुद के काम में लूँ. Only 10% will be used in my body, which will be giving me shape, which will be increasing my height and the girth and the weight and all. New tissues will be formed, some tissues will be worn out and all. So this is a continuous process. Life on throughout life it goes on. Okay, so 10% energy हमारी बॉडी में फिक्स हो रही है and 90% वो जा रही है. Now 10% when we talk about, we are talking about the today's energy. आज जो हमने खाया उसकी एनर्जी की बात करेंगे. लेकिन मेरी बॉडी में, क्योंकि मैं तो भी काफ़ी साल पुराना आदमी हूँ, तो इतने सालों से मैं तो रोज़ ही खाना खा रहा हूँ. मिनिमम 3-4 टाइम्स आई मस्ट एट समथिंग और अदर. चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें खाई होगी. व्रत उपवास तो मैंने ज़िंदगी में कुल मिला के 12-15 टाइम ही किए होंगे. इतना वो मेरा बस की बात नहीं है. सो इसका मतलब क्या, आई एम कीप ऑन ईटिंग एंड ऑल दैट वट एवर आई एट इज गॉन ऑन accumulated in my body. So if I become food for a lion or a tiger or a panther or any other organism, they will be getting my energy which I stored in all these years. So when we are talking about the food, the movement of the energy, I said that the last trophic level is getting in the points. But that is of the energy which is started from today. If we talk about yesterday's energy, day before yesterday's energy, a week's back's energy or month back's energy or years of energy, that is still accumulated in our body. So that is what the fact is. So energy is very important aspect for any living being. And the energy का ultimate source क्या है? The ultimate source of energy is sunlight. Now today we are going to study how material passes in a food chain. The transfer of material in a food chain. This I think I should rub it off. Now you can. इंडिया में सबसे अच्छा तरीका होता है एडवर्टीजमेंट का, दैट इज वर्बल. आप बातें करके सबको बताओ, और अरे परेशान कर दिया टीचर ऐसे. सो ये एनर्जी इंफॉर्मेशन के पास हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल. मटेरियल बोले तो सारे मिनरल्स भी होंगे, ऑक्सीजन भी होगी,
कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर भी होगा एंड ऑल. तो ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स डिसाइड एनर्जी जो भी हमको चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं, वो भी इकोसिस्टम से आएंगे. ओके, नाउ अगेन हियर वी विल टेक प्लांट. Plants take some amount of various substance. Say for example, I write about magnesium. So, say for example, a plant is there which is getting 1 milligram of magnesium. 1 milligram of magnesium it is absorbed through water from its root. The percentage of absorption is 100%. पूरा का पूरा magnesium अंदर चला जाएगा. Unlike the light energy, only 1% was used by the plant. बाकी एनर्जी पता नहीं कहाँ जाके गिर. यहाँ मिनरल जो है, मटेरियल जो है वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड ऑफ इट 90% विल बी यूज्ड बाय एंड 10% विल पास. 10% दैट इज ऑफ 1 मिलीग्राम का 10% कितना होगा, दैट इज 0.1 मिलीग्राम एनर्जी विल पास टू द नेक्स्ट एंड 0.9 मिलीग्राम एनर्जी इज कम आउट ऑफ देयर बॉडी. कैसे आया बॉडी से बाहर? मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इट इज द प्लांट एंड द फ्रूट्स, मे बी ड्राई लीव्स, मे बी सम पोलन ग्रेन्स, मे बी समथिंग एल्स जो उनकी बॉडी से बाहर चला गया. 90% of the absorbed mineral will come out from their body in the form of either excreta, in the form of fruit, in the form of seed, in the form of pollen grain, in the form of scales, in the form of old leaves. And only this much of energy was stored in them, material was stored in them, that is passed to the next trophic level. So when this plant becomes food for grasshopper or any insect, मैं कोई insect ही उठाता हूँ, why grasshopper only? So this energy 0.1 milligram which is made available to it, 0.09 milligram will go out and 0.01 milligram will pass to the bird. And of this 0.009 milligram go out and 0.001 milligram will be available to the next trophic level, maybe snake, and फिर वहाँ से eagle get. So again here it is following 10% rule. यहाँ से यहाँ तक 10% rule चल रहा है. यहाँ पे क्या चला? 100% absorption. At the plant level it was 100%. And from the first that is animal, that is herbivore, to the top carnivore, it was 10% rule. So there is no basic difference. Basic difference lies here. Light only 1% absorbed by the plant, whereas minerals almost 100%. It's better to write almost 100%. Okay? So this is what? Now lies the biggest interesting point. The interesting point is that the minerals which are lost, the magnesium coming out with their excreta, magnesium coming out with their minerals and all, that will be further used by the other organism. वो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मिनरल्स और मैग्नीशियम थोड़ी खराब होगा. मैग्नीशियम थोड़ी, मैंने आपको इन द बिगनिंग ऑल्सो जब व्हेन आई वाज टीचिंग यू आई सेड द सेम ऑर्गेनिक मैटर इज यूज्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन. ऐसा थोड़ी है मैग्नीशियम जमीन में खत्म हो गया अब चांद से आएगा या कोई और प्लेनेट लेकर के आएगा. वेरी रेयरली वी गेट सम ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम अदर दैट इज हेवनली बॉडीज. वो मीटियोराइट्स के फॉर्म में हो सकते हैं या कुछ और फॉर्म में हो सकते हैं. बाकी सब तो यही की यही यूज हो रहे हैं. ठीक है. सो द सेम मिनरल्स वी आर यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन. तो मेरी बॉडी में अगर यहाँ का कार्बन है वो हो सकता है मेरी बॉडी के अंदर किसी गाय के दूध से आया होगा. यहाँ का जो मैग्नीशियम है वो हो सकता है मैंने किसी दाल खाई होगी मूंग की उससे आई होगी. यहाँ का कैल्शियम हो सकता है वो किसी अंडे के शेल में से आया होगा या अंडे से आया होगा. यहाँ कुछ और. तो दे आर कीप ऑन moving from one part to another part and all, one organism to another organism and all, and वो वापस से रिसाइकल हो रहे हैं. यहाँ से ये वापस घुसने के लिए तैयार है, यहाँ से ये घुसने के लिए तैयार है. Here again it will enter. Unlike sunlight में क्या कहा था? One center
once used is used, then it cannot be used again. Why? Because after one use, once it is used, that will change into heat energy, and there is no other organism in the entire universe which can use heat energy for survival. Heat energy we can use during winters to keep our body warm. वो हम कर सकते हैं, डायरेक्टली सामने बैठ सकते हैं, but we cannot live on the heat energy. If we had to survive, we have to have chemical energy which is made by the plants in the form of organic substance. So two types of things are required. One is the energy and the second is minerals. Minerals material जो भी है. So mineral material is required by the plants which will convert them into organic matter and that will be used. However, तीसरा difference देखिए. जो तीसरा difference है वो क्या देख रहे हैं कि the plants, when it was talked about the energy, we had no other source of energy except food from the plants. Whereas some amount of minerals we can directly take from the soil, from the water. हम पानी पीते हैं, आजकल तो हम आरओ का पानी पीने लग गए हैं. आजकल तो हम आरओ का पानी पीने लगे जिसमें से सारे मिनरल्स निकाल दिए. अभी कुछ मशीन्स आ रही है, नसाका पसाका कौन से वो ऐड करते हैं. आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ आरओ मशीन्स, बट एनीवे जिसको जो पीना वो पिए, हम कौन होते हैं किसी को मना करने वाले. तो मैं ये कह रहा हूँ, जो वो मशीन से आरओ पानी में से मिनरल्स भी निकाल देती है. एंड देन फॉर द मिनरल्स यू आर डिपेंडेंट ऑन द फूड एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन द, फिर अगर ज़्यादा कम हो जाएंगे तो फिर आप टैबलेट्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे, क्या फायदा. ठीक है. देन सम मशीन, सम आरओ वाले कहते हैं कि साहब हम मिनरल्स ऐड करते हैं, भगवान जानते हैं कैसे ऐड करते हैं. एनीवे, तो वो जो है, हम जानवर तो डायरेक्टली पानी पीता है पानी के सोर्स से जाके. दे आर नॉट यूजिंग आरओ वाटर. सो व्हेन दे आर ड्रिंकिंग वाटर, सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स विल आल्सो कम. ठीक है. कोई जानवर मरा है, उसका डेड बॉडी उसमें गल रहा है पानी के अंदर, तो उसमें कैल्शियम होगा, वो भी चला जाएगा, मैग्नीशियम भी चला जाएगा. कोई पेड़ पत्ते गल रहे हैं पानी के सोर्स के अंदर, तो लीव्स हैव गॉट लॉट ऑफ क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम विल ऑल्सो कम इन वाटर. तो सम अमाउंट ऑफ मिनरल, फेयरली लेस, बट सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स इवन एंटर एट ईच ट्रॉपिक लेवल थ्रू वाटर. बट लाइट वॉज नॉट एंटरिंग. Light was not entering on our body. बाहर जरूर आती है light. When it falls on our body, we are getting warmth. That is something different. But it does not enter in our body. Minerals can enter in our body beside from plant, from other sources. ठीक है. तो ये एक और difference. So now we are in a state to differentiate between the flow of energy and flow of material. फ्लो ऑफ एनर्जी भी हमने कहा था वही 10% रूल फॉलो कर रही है. फ्लो ऑफ मटेरियल भी 10% रूल फॉलो कर रहा है. बट डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पर है. देयर इट वाज ओनली 1%, हियर इट इज ऑलमोस्ट 100%. फिर क्या पढ़ा हमने कि जो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? लाइट वाज एब्जॉर्ब ओनली बाय द प्लांट, बट द मिनरल्स कैन इवन बी एब्जॉर्ब बाय द अदर ट्रॉपिक लेवल. तीसरी बात हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो मिनरल्स निकल रहे हैं वो तो वापस यूज हो सकते हैं, पर लाइट के लिए तो प्लांट्स को कंटिन्यूसली सूरज की तरफ देखना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाई देयर इज सम डिफरेंसेस. तो उन डिफरेंसेस को हम टेबुलेट कर लेते हैं. ये आपको समझ आ गया? दैट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो. क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि कौन बेवकूफ़ है जिसके पास इतना टाइम है कि वो देखता रहेगा कि यार कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है. दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं. हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी हो तो मिनटों में भी काम हो जाए कि भैया प्लांट को इंसेक्ट ना खाया, इमीडिएटली बर्ड आ गई और खा गई उसको. एंड अभी बर्ड खाने के लिए बैठी थी, पीछे से स्नेक आके खा गया. इतना भी जल्दी नहीं खाना है क्योंकि बॉडी के अंदर फिक्स होने का टाइम थोड़ी मिला. ठीक है. सो देन वी हैव टू कीप वेटिंग कि भैया कौन किसको खा रहा है, किसके पास टाइम है, सब फालतू बात है. बट देन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय दिस वी गेट ए क्लू कि हाउ इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी. व्हाट विल हैपन इफ सन गोज ऑन लीव, छुट्टी पे चला जाए सूरज, बोले अब मेरा मन नहीं कर रहा, सब लोगों को कोरोना हो रहा है तो मैं भी थोड़ा आराम करूँगा. इफ द डे सन डिसाइड टू गो ऑन लीव, व्हाट विल हैपन? There will be lot of problems because the plant will not be able to get sunlight and they will not be able to make the chemical, that is the organic substances will not get chemical energy and on and on बहुत सारी problems आ जाएंगी. ठीक है. So this how the light energy is very
इंपॉर्टेंट टेंस, तो हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस के बारे में। Okay. The difference between flow of energy and flow of material. Flow of energy and flow of material. Serial number and point of difference. First, source. What is the ultimate source? एनर्जी का क्या है? सन. So material, it is from air, water or soil. That is the entire environment. Second, primary एक्सेप्टर. नो अदर सोर्स. केवल प्लांट ही कर सकते हैं. यहां पे कह सकते हैं मेनली प्लांट, बट a fraction of minerals also enters in body along with water. तीसरा, percent absorption by plants up to 1%, up to 100. And now comes to the most important point, that is flow of energy, cyclic है कि नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. साइक्लिक मतलब वही चीज वापस घूम घूम के आएगी. नॉन साइक्लिक मीन्स इट विल नॉट बी सर्कुलेटेड. इट विल वंस गॉन आउट, वंस यूज इट विल गो आउट फॉर एवर. सो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्ट, TYONAL, और ये है CYCLIC. It will go on and on, repeated again and again. ठीक है. आप और भी लिख सकते हैं. Decomposers have no role in this. Decomposers have a role in this. मेन रोल तो यहाँ decomposers का है. One main role plants का है. When we talk about the flow of energy, the main role is of plant. यहाँ अगर decomposers नहीं होंगे तो gone. आज संसार नहीं चल सकता था, because ऊपर जितनी भी minerals हैं, that would have been used by the plants and the animals and the other things. By today, we are living in 2020. दुनिया बन के पता नहीं over a million years हो चुके हैं. मतलब लाइफ आएगा. ठीक है. लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम over a million years. बैक्टीरिया तो पता नहीं 300 बिलियन ईयर्स पहले आ गया.
तो तब से लेकर के आज तक अगर सारा मिनरल्स प्लांट्स की बॉडी के अंदर ही स्टोर रहता है एंड दे हैव नॉट बीन डिकम्पोज, तो व्हाट वी वुड हैव गॉन टू ईट? कौन सा मिनरल्स रहता है हमारी बॉडी? हमारी हड्डियाँ ही नहीं होती, हम पता नहीं बोरे के जैसे होते हैं, खड़े ही नहीं हो पाते। हमारे में ब्लड ही नहीं होता क्योंकि आयरन ही नहीं। हमारे में फॉस्फोरस ही नहीं रहता तो हमारे दांत भी नहीं रहते। मतलब यू कुड हैव इमेजिन ऑल दीज थिंग्स हैंड टू द दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फेथफुली डूइंग देयर वर्क। ओके, so with this we come to know that each and every organism is playing very important role. Food कैसे जा रहा है इकोसिस्टम के अंदर? इकोसिस्टम इज रन ओनली बाय एनर्जी। ये जो सोर्स है वो इसी जमीन के है, यही ये घूमते रहते हैं, और ये जो सोर्स है वो कंटिन्यूसली बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स एंड ऑल। सो यू हैव सो मेनी डिफरेंट लॉजिक्स हियर, ठीक है। इफ समवन आस्क्ड हमें हम सन पे इतना निर्भर क्यों है? प्लांट्स को भी हम जानवरों को मार के खिला देंगे, ले खा ले भाई, ठीक है, मिनरल्स बन जाते हैं, तो वो सब बन जाएंगे, मिनरल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी खाद डालो, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो हाउ प्लांट्स विल मेक देयर फूड, एंड इफ प्लांट विल नॉट बी एबल टू मेक फूड, व्हाट वील ईट? सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइकिल। सो एवरी वन इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, तो हर एक का होना जरूरी है ना। एयरटेल वाला हर एक दोस्त ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे भी हर एक दोस्त ज़रूरी है। वो मगरमच्छ भी दोस्त है क्योंकि वो हम अपने लेवल पे मान सकते हैं वो हमारा दुश्मन है, पर इकोसिस्टम के लिए तो वो बहुत काम का है। यू एंड वी थिंक दैट द लायन इज बैड बिकॉज दे किल, बट फॉर द इकोसिस्टम इट इज़ नेसेसरी। वो नहीं होते तो सारे हर्बीवोर्स के नंबर इतने बढ़ जाते हैं, वो कुछ ही दिनों में घास खा पी के ख़त्म कर देते। So predators are required, consumers are required, herbivores are required, omnivores are required. हर एक की जरूरत है इकोसिस्टम, ठीक है। So that again it comes 2 mark, 3 mark, 4 mark question, very simple, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको जो बताया कि why it is said flow of energy is unidirectional, or why it is said the flow of material is साइक्लिक एंड ऑल। तो इन सारी चीज़ों के जवाब आपके पास आ चुके हैं। अभी हमारे पास में कुछ मिनट्स हैं जहाँ हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज फूड चेन हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फूड वेब। फूड वेब ये वेब वर्ड तो बहुत कॉमन हो गया विद द इंटरनेट, www, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो है कुछ ऐसे वेब की बात कर रहे हैं। व्हाट इज आवर वेब हियर? द वेब इज फूड वेब। ना फूड वेब कैसा होता है? हाउ, व्हाट काइंड ऑफ वेब इज दैट फूड वेब? तो हम देखते हैं। देखिए, वेब होता है किसी भी चीज़ को वो से मतलब ऐसे इंटरमिंगल कर दें, है ना, तो उसको हम कहेंगे वेब। सी इफ यू सी द फूड चेन स्टार्टेड बाय ग्रास। अ फूड चेन ऑफ ग्रास है ग्रास, देन गोट एंड देन लायन। Then another food chain was there which had grasshopper, then it had a bird, sparrow, and the bird was consumed by lion, or the bird was eaten away by snake, and the snake is eaten away by eagle. कोई और भी हमारे पास फूड चेन थी जहाँ पे the bird was directly eaten away by eagle, ठीक है। Then we had another food chain here where the grass was consumed by the bird, and bird को जो है वो cat खा गई, and cat को कोई खा ही नहीं रहा। At the same time we had some another food chain in which यहाँ पे cow
काउ लिख देते हैं. एंड काउ ऑल्सो बिकम फूड फॉर लायन. गोट हो गया, ग्रास हॉपर. बर्ड हो गया, स्नेक. एंड अगेन वी कैन टेक अनदर फूड चेन वेयर इट इज अ ग्रास हॉपर. And grasshopper become food for a frog, and frog is consumed by either an eagle directly, or it can be consumed by a snake. Okay, so we get a very complicated web-like structure. Now in this web, जो सबसे पहले आ रहे हैं वो तो हो गया प्रोड्यूसर. यहाँ जो सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं ये सारे हो गए हर्बिवोर. ठीक है, हमारा ये थोड़ा ऊपर तक चला गया, ये हमारे हो गया. फिर यहाँ से लेकर के जैसे ये हमारे हो गए थर्ड टॉपिक लेवल, दैट इज कार्निवोर. एंड ये भी हमारा उसके अंदर इंक्लूड है. एंड ये जो सबसे ऊपर वाले हैं टॉप पर हटा देंगे. हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. Otherwise, if you look in the book, you will find that the first level is only producer, then the herbivores are there, then the primary consumers are there, secondary consumer are there, and the top consumer or top carnivores are there. So they can be categorized. ये क्या कहना चाहता है? What we understand by a food web? Food web से एक बात समझ आती है कि खाना किसी का पक्का नहीं है कि वो इसी को ही खाएगा. Nobody is bound कि one will eat or consume only this, nothing else. So since we have got a variety of food item available with us, we have got a choice. गोट के पास चॉइस थी कि वो आज घास खाए, बर्ड के पास चॉइस थी कि वो आज घास खाए, कल उसके चॉइस है कि वो ग्रास ऊपर खाए. ठीक है, लायन एज ए चॉइस के बाद गोट खाए, कल वो हो सकता काउ खाए, परसों हो सकता वो बर्ड ही खा जाए, नर्सरी वाला किसी और दिन में वो कुछ और चीज़ खाए. तो वॉट एवर टाइप ऑफ फूड इज अवेलेबल, सो दैट कैन बी कंज्यूम बाय दैट. So this is how a complicated web-like structure is obtained, and that web is called food web. Okay, so that's all for today. पढ़ाई की तो बात हो गई. अब